ایک بڑا وبال ہوا اوم اور اللہ کے اوپر. سوشل میڈیا میں، ٹی وی چینلوں میں مولانا ارشد مدنی حفظہ اللہ دامت برکاتہم انہوں نے اپنی اسپیچ میں ایک بات کہی کہ اوم وہ ہے جو ہوا کی شکل میں ہے، جو ہر جگہ پر ہے، اسی کو ہم اللہ مانتے ہیں. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہر جگہ پر ہے وہ اللہ ہے، اور اسی کو ہمارے ہندو بھائی اوم بولتے ہیں. اوم اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات پر لوگوں کو بہت اعتراض ہو گیا. کچھ لوگوں کو سمجھ میں آیا، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اوم اللہ کیسے ہے ہم سمجھاتے ہیں آپ کو. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس پورے برہمانڈ میں، پوری دنیا میں ایک ہی اللہ ہے، دو نہیں ہے. اللہ ایک ہے. اسی اللہ کو فارسی میں خدا، عربی میں اللہ، انگلش میں لارڈ اینڈ گاڈ، سنسکرت میں پرمیشور، پرماتما، پرم شکتیمان، اجنیما. لیکن ہے ایک اللہ. باقی اور الرحمن کون ہے پھر؟ الرحیم کون ہے پھر؟ جبار کون ہے؟ قہار کون ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ الخالق پھر کون ہے؟ اللہ ایک ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے بہت خوبصورت خوبصورت نام ہیں، اچھے اچھے نام. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا. رحمان ایک اللہ کی صفت ہے، رحیم اللہ کی صفت ہے، ودود اللہ کی صفت ہے. اور ایک انسان میں جیسے الگ الگ صفت ہو سکتی ہے، جیسے میں، آپ میں سے کوئی لڑکا اسٹوڈنٹ ہے لیکن وہ بہترین کرکٹ کھیلتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کرکٹر بڑھیا ہے. بہترین گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، آپ کیا کہیں گے کہ بہترین ڈرائیور بھی ہے. بہترین اسپیکر بھی ہے، اسپیچ اچھی دیتا ہے، تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ بہترین اسپیکر بھی ہے. یا اور بھی کچھ ہنر آتے ہیں اس میں، تو اس کا نام ڈرائیور بھی ہے، اس کا نام بیٹس مین بھی ہے، اس کا نام بالر بھی ہے، اس کا نام الگ الگ ہے. کیونکہ الگ الگ ہنر ہونے کی وجہ سے ایسے ہی سمجھ لیجیے اللہ تبارک و تعالی سمجھانے کے لیے بول رہا. نام اللہ کا اللہ ایک، اللہ کے اوصاف کمالات، نام بہت پیارے پیارے، بہت سارے نام. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. جس نام سے چاہے اللہ کو پکار لو. لیکن اللہ ایک. ایسا نہیں کہ اللہ ہے سب سے بڑا لیکن الرحمن چھوٹا والا اللہ ہے، الرحیم اس سے چھوٹا والا ہے، الخالق اور چھوٹا والا ہے، رب العالمین اور چھوٹا ہے. نہیں، اللہ ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وشیشتائیں ہیں. قرآن سے دلیل میں دے چکا ہوں آپ کو. اب ہمارے ہندو بھائیوں میں آئیے. ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں چونکہ ہندو بھائیوں کی تعداد بہت اچھی خاصی تعداد میں ہے، بڑی تعداد میں، ان کو بھی سمجھنا ہے، ان کو سمجھانا ہے. ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا. دیو ایک، پرماتما ایک ہے. اب اتنے سارے نام جو پھر دیو پرماتما کے، برہما ہے، وشنو ہے، شیو ہے، گنیشا ہے، اور بھی نام ہے، ہری ہے. وہ کیا ہے پھر؟ ایک منتر ہے گروڑ پران کا، اندرم، اندر، متر، ورون. اندر بھی نام ہے بھگوان کے،
मित्रा भी नाम है ईश्वर के, वरुण भी नाम है ईश्वर के। इंद्र, मित्रा, वरुण, एकम सद विप्रा बुधा वदंती। ईश्वर एक ही है लेकिन नाम अनेक हैं ईश्वर के। विष्णु उसी एक ईश्वर का नाम, शिव उसी एक ईश्वर की एक अलग सिफत, ब्रह्मा उसी एक ईश्वर की एक अलग रूप है। इसीलिए कहा गया त्रिधा भिन्नो अहम विष्णु ब्रह्म शिव। त्रिधा भिन्नो, तीन अलग अलग नाम है। त्रिधा भिन्नो अहम विष्णु ब्रह्म शिव। हरार्या गुणै रसिकलो हम सदा हरे, एकम सद विप्रा बुधा वदंती। तीन अलग अलग नाम है लेकिन एक ईश्वर है। उसी एक ईश्वर को विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा है। जैसे कुरान में है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं। अब अल्लाह और ओम एक कैसे हैं? एक इसके पीछे आपको थोड़ी सी तशरीह करनी पड़ेगी, तब आप समझेंगे। ओम तीन वर्ड से मिलकर बना, तीन लफ्ज से। मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपको पता ना हो तो आप याद कीजिएगा। ओम तीन लफ्ज से मिलकर बना, आकार, मकार, सकार। ओम, अकार, मकार, सकार। इसी ओम का, बल्कि यूं कहिए कि विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी को समेटकर ओम बनाया गया। विष्णु, ब्रह्मा, शिव का शॉर्ट नाम ओम। बहुत से लोग बोलते हैं कि ओम एक ऐसा वर्ड है गूंगा भी बोल सकता है, और ओम एक ऐसा वर्ड है कि क्रिश्चियन भी बोलते हैं ओमीन, ओम से ओमीन बोलते हैं। और इस्लाम में भी डाल देते हैं कि मुसलमान भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो बाद में ओमीन बोलते हैं, यानी ओम बोलते हैं। वो एक गलत कॉन्सेप्ट है। तो ये ओम तीन नाम से मिलकर बना, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, ओम। तो अल्लाह के मुकाबले में कैसे हुआ? अब देखिए, ब्रह्मा, ब्रह्मा भी ओम में है। तो ब्रह्मा का मतलब क्या है? ब्रह्मा का मतलब अदम से चीज को वजूद में लाना। कोई चीज नहीं थी, उसको पैदा करने की जिम्मेदारी ब्रह्मा की होती है। ब्रह्मा की, ब्रह्मा जो विष्णु के नाभि से पैदा हुए, वो ब्रह्मा जो पूरी दुनिया का क्रिएटर है। दुनिया में जितनी भी चीजें, उन तमाम चीजों को पैदा करने वाली जात ब्रह्मा। और इसी ब्रह्मा का अरबी में ट्रांसलेशन कीजिए। इफ यू ट्रांसलेट ब्रह्मा इनटू अरबिक लैंग्वेज, एग्जैक्ट द वर्ड विल बी इन अरबिक लैंग्वेज अल खालिक। ब्रह्मा मीन्स पैदा करने वाली जात। अरबी में अल खालिक, इसमें फाइल, पैदा करने वाली जात। जो ब्रह्मा का मतलब वही अल खालिक का मतलब, सेम मीनिंग देख लीजिए। और अल्लाह का ही नाम है अल खालिक। अल्लाह का एक नाम अल खालिक, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के तमाम चीजों को पैदा किया और पैदा करने वाला है। अल खालिक, ब्रह्मा, दोनों को अलग कीजिए। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम ओम में विष्णु है। और विष्णु का मतलब पालना, पैदा करना ब्रह्मा की जिम्मेदारी, और पालना पूरे संसार को, मर्द हो, औरत हो, जानवर हो, मछली हो, दुनिया के अंदर जिसको रोजी दी जा सकती है, ऑक्सीजन दी जा सकती है, ये टोटल जिम्मेदारी किनकी है? ये टोटल जिम्मेदारी विष्णु की है, जो पालता है। पालने वाली जात का नाम संस्कृत में विष्णु। अब इसका ट्रांसलेट अरबी में कीजिए तो क्या होगा? इसका ट्रांसलेट अरबी में करेंगे तो अरबी में अल्लाह को क्या बोलते हैं? रब्बुल आलमीन। विष्णु का एग्जैक्ट मतलब अरबी में रब्बुल आलमीन, जो दोनों जहान का रब है, पालने वाला है दोनों जहान का। अब क्या मतलब हुआ?
रब्बुल आलमीन का संस्कृत में नाम विष्णु, अल खालिक का संस्कृत में नाम ब्रह्मा, और अल खालिक और रब्बुल आलमीन किसका नाम? अल्लाह का। एक और नाम रह गया शिव। शिव जी वो परमात्मा है, वो ईश्वर है जो उमूमन दुनिया के अंदर जहां जहां भी हादसात होते हैं, भूकंप आता है, जलजला आता है, जैसे तुर्की के अंदर जलजला आया, एक्सीडेंट होता है, किसी की मौत खतरनाक तरीके से होती है, एक्सीडेंट होकर मौत होकर, सैलाब आ जाता है, आंधी तूफान अगर आ जाए, तो ये सारी चीजें ये जिम्मे में है शिव जी के। शिव, गुस्से वाली सिफत को शिव बोलते हैं। अब इसी शिव को अरबी में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? अल क़हार। अल्लाह की ही सिफाती नाम में से एक नाम है अल क़हार। रब्बे जुल जलाल जब गुस्से में आता है, अल्लाह तबारक व तआला की सिफत क़हारियत जब जोश में आती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत अल्लाह तबारक व तआला के पकड़ से नहीं बचा सकती। तारीख गवाह है, अल्लाह को गुस्सा आया तो कौम लूत तबाह बर्बाद कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत क़हारियत जब जोश में आई तो मेरे दोस्तों, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर आग की पत्थर की बारिश कर दी गई। जब अल्लाह तबारक व तआला की सिफत क़हारियत जोश में आती है तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानियों के जरिए से पूरी दुनिया के इंसानों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। क्यों? वो ईश्वर को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते थे। अल्लाह गुस्से में आता है, अल्लाह तबारक व तआला फिर पूरी उस कम्युनिटी को बर्बाद कर देता है, हलाक कर देता है। क्यों? न मानने की वजह से। बनी इस्राइल में खिंजीर बना दिए गए, वकूनू क़िरदतन खासीन। रब की बात नहीं मानी तो लो तुम बंदर बना दिए जाओगे, तुम्हारी शक्लें बर्बाद बदल दी जाएंगी। और फिर जब गुनाह ज्यादा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी शक्ल में कहीं ना कहीं कौम को, इंसान को बताने के लिए कि इंसानों तुम्हारी कोई हैसियत इस जमीन पर नहीं है, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही ताकतवर हूं, मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे नबी तुम तक बात पहुंचाते हैं, मेरे हकामात तुम तक पढ़कर सुनाते हैं, तुम्हें बताते हैं, तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। कौम आद, कौम समूद, कौन नहीं जानता है कौम आद, कौम समूद को? पहाड़ों के अंदर आज भी इनके मकानात बने हुए हैं। ये हाथों से कुरेद कुरेद कर बड़े बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े महल तामीर कर लिया करते थे। लेकिन जब रब के भेजे हुए नबी और पैगंबर की बात नहीं मानी तो अल्लाह तबारक व तआला ने 7-8 दिन तक मुस्तकिल हवाओं के जरिए से पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई। यह है सिफत क़हारियत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ताइफ के मैदान में गए, ए लोगों कलिमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, अल्लाह को एक मान लो कामयाब हो जाओगे। लेकिन वहां के लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात नहीं मानी कि नहीं मोहम्मद तुम्हें तो कोई लालच होगी, तुम पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं कोई दौलत कमाने नहीं आया हूं, मैं तुमसे किसी अज्र का मुतालबा नहीं करता हूं, मैं तुमसे डोनेशन मांगने नहीं आया हूं, मैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं आया हूं, अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं आया हूं। बस जिस रब ने मुझे नबी और रसूल बनाकर भेजा है, जिस काम के लिए भेजा है, मैं उस कलिमे की तबलीग के लिए तुम्हारे पास आया। ऐ ताइफ वालों, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, इस कलिमे को पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। दुनिया जानती है कि ताइफ के लोगों ने सीने से लगाना चाहिए था, मोहब्बत का पैगाम आम करना चाहिए था, तवाज़ो करते, घर पे बिठाते, खाना खिलाते, पानी पिलाते। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ वालों ने कैसी बदतमीजी की। आपके सर पर पत्थर मारे गए, आपका सर फटता है, खून निकल जाता है, कपड़े खून में भीग जाते, आपको चक्कर आने लगता है, आप एक दरख्त के किनारे में बैठ जाते हैं, रब से कहते हैं अल्लाह मेरी क्या गलती है, कौन से गुनाह
सजा मुझे दी जा रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेबसी की शिकायत अपने रब से करते हैं। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की सिफत क़हारियत जोश में आती है। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत क़हारियत जोश में आने के बाद, ऐ जिब्राइल, तुम्हें किस लिए ताकतवर बनाया? तुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। लेकिन आज अगर तेरी ताकत काम ना आए, मेरे महबूब को देखो, खून पे लथपथ कर दिया गया है, परेशानी के आलम में, जाओ मदद करो। जिब्राइल अमीन आते हैं, आकर कहते हैं कि ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप इशारा कर दो, ताइफ वालों को ऐसे दोनों पहाड़ों के बीच में पीस दिया जाएगा। प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि ऐ जिब्राइल, ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता मैं। दुनिया वालों को एक पैगाम है, जो लोग बोलते हैं कि मोहम्मद ने जुल्म तशद्दुद करके इस्लाम को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया है। आपके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई, तब भी आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। आपके सहाबा को मारा पीटा गया, तब भी आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। आपके गले में ओजड़ियां डाल दी गई, तब भी आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। आप अलैहिस्सलाम नमाज में जाते थे, उनके गले में कपड़े देकर मल दिया जाता था, तब भी आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। दुनिया वालों, तुम तो अपनी चैनलों को फेमस करने के लिए इल्जामात लगाते हो। पढ़ो सीरत की किताबों को, पढ़ो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, पढ़ो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटिश उठाकर, वहां पर लास्ट मैसेंजर पढ़ो, 100 बुक स्टीफन ब्रेड हार्डली की किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को लिखा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल से कहा, अगर आप जालिम होते, मोहम्मद क्रूर होते, मोहम्मद रसूलुल्लाह तशद्दुद परस्त होते, तो आप कहते कि जिब्राइल, तुम अच्छे मौके पर आए, देखो मुझे मारकर मेरी क्या हालत की, इंतकाम लो, एक एक का इंतकाम लो, पहाड़ों के बीच में पीस दो। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जिब्राइल, अल्लाह ने मुझे जालिम बनाकर नहीं भेजा है। अल्लाह अगर कायनात का रब्बुल आलमीन है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। मेरे भाइयों, मुझे सिर्फ इस वाक़े को मैंने इसलिए नकल किया आप लोगों के सामने, मुझे बताना है कि अल्लाह जब गुस्से में आया तो जिब्राइल को कहा कि जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद करो, जो चाहे वो करना। लेकिन नहीं, तो सिफत क़हारियत, जोश में आना, अल्लाह तबारक व तआला जब जोश में आता है, गुस्से में आता है, तो फिर अल्लाह की पकड़ से, उनकी सख्त पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। तो शिव का मतलब अरबी में, इफ यू फाइंड आउट अरबिक वर्ड इन कुरान एंड हदीस, डेफिनेटली you will find, you will achieve, you will search, the word is al-qahar. al-qahar आपको मिलेगा। जो मतलब संस्कृत में शिव का है, वही मतलब अरबी में al-qahar का है। अब देख लीजिए, al-qahar बोलिए या संस्कृत के अंदर में शिव बोलिए। मैंने कहा था ना कि अल्लाह को ओम क्यों कहा गया? क्योंकि ओम में 3 नाम है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा का मतलब अल खालिक, शिव का मतलब रब्बुल, विष्णु का मतलब रब्बुल आलमीन, शिव का मतलब अल कहार, और खालिक रब्बुल आलमीन अल कहार किसके नाम है? अल्लाह के। तो इसीलिए ओम को अल्लाह से मशाबिहत दी गई थी, ये मैंने एक्सप्लेन किया। वरना उमूमन हमारे हिंदू भाई भी बोलते हैं कि पूरी दुनिया का परमात्मा एक ही है, और यकीनन एक परमात्मा है। गायत्री मंत्र भी, ये आप ब्रह्मा सूत्र पढ़िएगा तो ब्रह्मा सूत्र में तो साफ लफ्जों में कहा है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, कि दूसरा है ही नहीं। द्वितीयम, संस्कृत में नफी के लिए होता है। असंभव, अहिंसा, सत्यम करोदस त्यागा, वो भी जानते हैं, हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं, एक ईश्वर। तो इस्लाम का पहला ऑर्डर, अल्लाह को एक मानो। हमारे हिंदू भाइयों, आपका पहला ऑर्डर आपके किताब में, शास्त्र में, ईश्वर को एक मानो। और क्या कहा?
یہ کہا کہ دھارمک بن کر زندگی گزارو. اسلام کی نظر سے دیکھیں گے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دھارمک بنو، مذہبی بنو، یعنی سچا مسلمان بنو. سچا مسلمان بننے کا مطلب اپنے مذہب کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارو. کسی کی باتوں پر مت آؤ، کسی پیر و پیغمبر کی باتوں پر یا دنیا کی باتوں پر یا راجنیتاؤں کی باتوں پر یا ادیوگ پتی کی باتوں پر یا کسی لیڈر کے کہنے پر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. تم صرف بات مانو تو اپنے قرآن کی بات مانو. تم اگر کامیاب ہو سکتے ہو تو اپنی شریعت کو سینے سے لگا کر، گلے لگا کر تم کامیاب ہو سکتے ہو، ورنہ دنیا کی کوئی اور دنیا کا راستہ نہیں ہے کہ جس پر چل کر تم کامیاب بن سکو. سینکڑوں جگہ کے اوپر یہ بات بتائی گئی کہ دھارمک بنو، کامل مسلمان بنو، سچا مسلمان بنو، قرآن و شریعت کے غلام بنو، قرآن شریعت کو مانو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو. جھگڑا ہو جائے تو ادھر ادھر مت بھٹکو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن و شریعت کی طرف دوڑو، وہاں مسئلے کا حل ہوگا. دھارمک بنو. میرے ہندو بھائیو، آپ کا دھرم کیا کہتا؟ شریمد بھگوت گیتا کا 27واں شلوک پڑھیے. اس کے اندر کہا گیا صاف صاف لفظوں میں، تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا